Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में भाइयों और बहनों, today's verse for our meditation is taken from Hebrews 13:16. आज का हमारा मनन चिंतन का वचन इब्रानियों 13:16 से लिया गया है। To do good and to communicate forget not, for with such sacrifices God is well pleased. भलाई करना और संगति करना न भूलें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। Chapters 1 to 9 of Hebrews explained how the new covenant in Jesus Christ is superior to the old covenant of animal sacrifices. इब्रानियों के अध्याय 1 से 9 में बताया गया है कि कैसे यीशु मसीह में नई वाचा पशु बलि की पुरानी वाचा से श्रेष्ठ है। New covenant is in Jesus Christ. नई वाचा यीशु मसीह में है। Old covenant is related to the animal sacrifice. पुराने नियम का संबंध पशु बलि से है And this comparison drew on extensive use of Old Testament scriptures. और इस तुलना में पुराने नियम के शास्त्रों का व्यापक उपयोग किया गया है। In chapter 10 to 12, अध्याय 10 से 12 में they applied that evidence to encourage Christians to hold fast despite persecution. उन्होंने उस साक्ष्य को लागू करके मसीहियों को उत्पीड़न के बावजूद दृढ़ बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया। The summary of these applications was that believers ought to trust in their faith इन आवेदनों का सारांश यह था कि विश्वासियों को अपने विश्वास पर भरोसा रखना चाहिए and also they choose to obey God. और साथ ही उन्हें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। Times of struggles will be there. संघर्ष के समय होंगे। Chapter 13 adds a few specific reminders about Christian conduct. अध्याय 13 में मसीही आचरण के बारे में कुछ विशेष अनुस्मारक जोड़े गए हैं। Passage also reiterates the idea that Christ is meant to be our ultimate example. यह अंश इस विचार को भी दोहराता है कि मसीह हमारा अंतिम उदाहरण है। The letter concludes with a request for prayer and words of blessings. पत्र प्रार्थना और आशीर्वाद के शब्दों के अनुरोध के साथ समाप्त होता है। And Hebrews 13:7 to 17 contains और इब्रानियों 13:7 से 17 में the practical instructions for a Christian believer. एक मसीही विश्वासी के लिए व्यवहारिक निर्देश दिए गए हैं। These follow major themes from the rest of the letter. ये बाकी पत्र के मुख्य विषयों का अनुसरण करते हैं। That is perseverance ये हैं दृढ़ता and also peacefulness. और शांति Peace. और स्तुति। After all these things, these instructions are given. इन सब बातों के बाद ये निर्देश दिए गए हैं। This text also continues to parallel components of the old covenant of the ministry of Jesus Christ. यह परीक्षण यीशु मसीह की सेवकाई की पुरानी वाचा के घटकों के समानांतर भी जारी रहता है And also after that these things are given. और उसके बाद भी ये बातें दी गई हैं। Specifically, these verses compare the disposal of sacrificed animals with Jesus' crucifixion. विशेष रूप से ये पद्य बलि दिए गए जानवरों के निपटान की तुलना यीशु के क्रूस पर चढ़ने से करती हैं, Because both occurred outside the borders of the community. क्योंकि दोनों ही घटनाएं समुदाय की सीमाओं के बाहर हुईं। The writer also encourages good works and for believers to cooperate with their spiritual leaders. लेखक अच्छे काम करने और विश्वासियों को अपने आध्यात्मिक नेताओं के साथ सहयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित करता And है also they must cooperate with spiritual leaders. और साथ ही उन्हें आध्यात्मिक नेताओं के साथ सहयोग करना चाहिए। So Christians are often commanded to do good for others. इसलिए ईसाइयों को अक्सर दूसरों के लिए अच्छा करने की आज्ञा दी जाती है। Matthew 5:16, मत्ती 5:16, Corinthians 10:24, कुरिन्थियों 10:24, 1 Peter 4:10. 1 पतरस 4:10। This is never presented as a means to obtain salvation, इसे कभी भी उद्धार पाने के साधन के रूप में प्रस्तुत नहीं किया but जाता। these are not good works are not to earn redemption from God. लेकिन ये अच्छे काम परमेश्वर से छुटकारा पाने के लिए नहीं है। On the contrary, इसके विपरीत Scripture makes it clear that good deeds can never rescue us from sin. पवित्र शास्त्र यह स्पष्ट करता है कि अच्छे काम हमें पाप से कभी नहीं बचा सकते। Galatians 3rd chapter 10 to 14, गलातियों 3:10-14, Romans 11:6. रोमियो 11:6। The only thing that justifies us before God is the sacrifice of Jesus Christ. एकमात्र चीज जो हमें परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराती है वह है यीशु मसीह का बलिदान। When we accept that by faith, we can be reconciled with God. जब हम ये स्वीकार करते हैं कि विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं, Good works then are not what justifies us before God, तब अच्छे काम हमें परमेश्वर के सामने उचित नहीं ठहराते, but they are natural, expected outcome of our relationship with God. लेकिन वे परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते का स्वाभाविक अपेक्षित परिणाम है। James chapter 2:17 and 18. याकूब 2:17-18। तो So the prior verse noted that our willingness to do good for others is tied to our praise to God. पिछली पद्य में बताया गया है कि दूसरों के लिए भलाई करने की हमारी इच्छा परमेश्वर की स्तुति से जुड़ी हुई है।
It is both are linked. दोनों जुड़े हुए हैं। Those who are saved ought to be thankful and joyful. जो लोग बचाए गए हैं उन्हें आभारी और खुश होना चाहिए। Hebrews 12:3-12. इब्रानियों 12:3-12। Joy should inspire good works. आनंद से अच्छे कामों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। It is the good works done for others also is an act of worship. दूसरों के लिए किए गए अच्छे काम भी आराधना का एक कार्य है। Jesus accomplished all of this sacrifice needed to save our soul. यीशु ने हमारी आत्माओं को बचाने के लिए जरूरी सभी बलिदान पूरे किए। Hebrews 9:24-26. इब्रानियों 9:24-26। So our sacrifice should only be out of love and praise for Him. हमारा बलिदान केवल उसके लिए प्रेम और प्रशंसा से बाहर होना That is चाहिए। Hebrews 13:15. इब्रानियों 13:15। In Acts 2:42-47, प्रेरितों के काम 2:42-47। those believers of the early church, they devoted themselves to fellowship. आरंभिक कलीसिया के वे विश्वासी संगति के लिए समर्पित थे। All the believers were together and had everything in common. सभी विश्वासी एक साथ थे और उनकी हर चीज साझा थी। They sold their properties and possessions to give to anyone who had in need. उन्होंने अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जरूरतमंदों को दिया। And that is what we can see in Acts chapter 4, प्रेरितों के काम 4, 32-35. 32-35। So the command in Hebrews 13:16 to not to forget to do good and share is applicable to all of us. इब्रानियों 13:16 में भलाई करना और बांटना न भूलने की आज्ञा हम सभी पर लागू होती है। An exhortation suggests we must be prone to neglecting to do good and share with others. इस तरह का उपदेश यह सुझाव देता है कि हमें परमेश्वर की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। Think about how easy it can be to get caught up in the busyness of our own lives that we become oblivious to the needs of others. दूसरों के साथ अच्छा करना और बांटना, इस बारे में सोचें कि अपने जीवन की व्यस्तता में फंसना कितना आसान हो सकता है कि हम दूसरों की जरूरतों के प्रति बेखबर हो जाते हैं। We might not intend to be so self-absorbed, but it हो happens. सकता है कि हम इतना आत्मलीन होने का इरादा न रखते हों, लेकिन ऐसा होता If you है। are someone heavily involved in ministry, यदि आप सेवकाई में बहुत अधिक शामिल हैं, perhaps you are tired of all the neediness out there, and maybe you don't want to extend yourself beyond what you are already doing. तो शायद आप वहाँ की सभी जरूरतों से थक चुके हैं और शायद आप जो पहले से कर रहे हैं उससे आगे खुद को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, And you don't want to do anything beyond that. और आप उससे आगे कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। The remainder still applies and is further substantiated in verses like Galatians chapter 6 verses 9 and 10. यह अनुस्मारक अभी भी लागू होता है और गलातियों 6, 9 और 10 जैसी पद्यों में इसकी पुष्टि की गई है। When we read those two verses, हम उन 2 पद्यों को पढ़ते हैं, chapter 6 गलातियों 6, verses 9 and 10. 9 और 10। Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. हमें भलाई करने में थकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम हार न माने तो सही समय पर हमें फसल मिलेगी। इसलिए जब भी हमें मौका मिले हम सभी लोगों के साथ भलाई करें, खासकर उन लोगों के साथ जो विश्वासियों के परिवार से हैं। What it means to do good and share with others. दूसरों के साथ भलाई करना और बांटना, इसका क्या मतलब है? Since this is a twofold command, चूंकि यह एक दोहरी आज्ञा है, we would do well to consider the meaning of each command. इसलिए हमें प्रत्येक आज्ञा के अर्थ पर विचार करना चाहिए। To do good literally means to do well, to be beneficent to other people. अच्छा करने का शाब्दिक अर्थ है दूसरों के लिए अच्छा करना, दूसरों के लिए लाभकारी होना। This could take to many forms of kindness towards others. यह दूसरों के प्रति दयालुता के कई रूपों को ले सकता है। Goodness emulates the character of good God. हमारी अच्छाई अच्छे परमेश्वर के चरित्र का अनुकरण करती है। What God is doing? परमेश्वर क्या कर रहा है? 5:45-46. मत्ती 5:45-46। Even to the unrighteous people he is helping. यहाँ तक कि वह अधर्मी लोगों की भी मदद कर रहा है। 3 John 1:11. 3 यूहन्ना 1:11 में। And so in being good to others, और इसलिए दूसरों के प्रति अच्छा होने में we are being in his hands and feet in extending his love and compassion towards others. हम उसके हाथों और पैरों में हैं, दूसरों के प्रति उसके प्रेम और करुणा को बढ़ाते हुए। Further, Jesus said, इसके अलावा यीशु ने कहा, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए जो कुछ किया वह मेरे लिए किया। And whatever you did whatever you did not do for one of these least of these, you did not do it for me. और जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह मेरे लिए नहीं This is किया। what we read in Matthew 25. यही हम मत्ती 25
34 to 46. 34 से 46 में पढ़ते हैं। Jesus takes the way we treat others personally. इसलिए यीशु हमारे द्वारा दूसरों के साथ किए जाने वाले व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से लेते Being हैं। good toward others is a means of serving Him, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना उनकी सेवा करने का एक तरीका है, not just the person in front of us. सिर्फ हमारे सामने वाले व्यक्ति की नहीं। So to share comes back from the Greek word तो शेयर करने का मतलब ग्रीक शब्द koinonia, कैनोनिया से आया है, which we usually translate as fellowship, जिसका हम आमतौर पर मेलजोल के रूप में अनुवाद करते हैं। pertaining to what we share in common. हम जो साझा करते हैं उससे संबंधित। We often think of fellowship as a verbal sharing, but it is so much more as confirmed in Romans 12:13. हम अक्सर मेलजोल को मौखिक साझेदारी के रूप में सोचते हैं, लेकिन यह इससे कहीं ज्यादा है, जैसा कि रोमियो 12:13 में पुष्टि की गई है। In Romans 12:13, रोमियो 12:13 में share with the Lord's people who are in need, practice hospitality. Romans 12 verse 13. प्रभु के उन लोगों के साथ बांटें जो जरूरतमंद हैं, आतिथ्य का अभ्यास करें। रोमियो 12 पद 13। When we truly understand our spiritual bonds in Jesus, जब हम यीशु में अपने आत्मिक बंधनों को सही मायने में समझते हैं, that which we share in common, making us members of one another, जो हम साझा करते हैं, जो हमें एक दूसरे का सदस्य बनाता and है, we should be more open to sharing on the physical level as well. तो हमें भौतिक स्तर पर भी साझा करने के लिए अधिक खुला होना The चाहिए। early church obviously got this connection as we read in Acts 4:32. जैसा कि हम प्रेरितों के काम 4:32 में पढ़ते हैं, आरंभिक चर्च को यह संबंध स्पष्ट रूप से मिला। Verse यदि आप प्रेरितों के काम Acts 4:32. 4:32 की पद्य पढ़ें, All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. तो सभी विश्वासी हृदय और मन से एक थे। किसी ने भी दावा नहीं किया कि उनकी कोई भी संपत्ति उनकी अपनी है, बल्कि उनके पास जो कुछ भी था वे उसे साझा Why करते थे। doing good and sharing is important? भलाई करना और दूसरों को बांटना क्यों जरूरी है? We give off our time and resources and are willing to get out of our comfort zones or be inconvenienced to help others. We bless God. जब हम अपना समय और संसाधन त्याग देते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए अपने आरामदेह या असुविधाजनक क्षेत्रों से बाहर निकलने के लिए तैयार रहते हैं, तो हम परमेश्वर को आशीर्वाद देते हैं। In Hebrews 13:16, इब्रानियों 13:16 में for with such sacrifices God is pleased. बताया गया है कि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। Why? क्यों? His son sacrificed his life for us. उसके बेटे ने हमारे लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। When we turn around and share with others sacrificially, we honor him. जब हम दूसरों के साथ त्यागपूर्ण तरीके से पेश आते हैं और उन्हें बांटते हैं, तो हम उसका आदर करते हैं। In Hebrews 13:16, इब्रानियों 13:16 how में it starts? इसकी शुरुआत कैसे होती है? And do not forget to do good and share with others. दूसरों के साथ भलाई करना और उन्हें बांटना न This is भूलें। connected with verse 15. यह पद 15 से जुड़ा हुआ है। So through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess his name. इसलिए यीशु के द्वारा आइए हम परमेश्वर को लगातार स्तुति का बलिदान चढ़ाएं, उन होठों का फल जो खुलेआम उसके नाम का प्रचार करते हैं। Doing good and sharing with others is a form of worshiping God. भलाई करना और दूसरों के साथ बांटना परमेश्वर की आराधना का एक रूप है। So we worship not just with our lips, but also by our actions that please him. इसलिए हम सिर्फ अपने होठों से ही नहीं, बल्कि अपने उन कामों से भी आराधना करते हैं जो उसे प्रसन्न करते हैं। Further, when others see our good deeds, इसके अलावा जब दूसरे हमारे अच्छे कामों को देखते हैं, we are letting our light shine, तो हम अपनी रोशनी चमकाते हैं, causing them also to glorify your Father in heaven. जिससे वे भी स्वर्ग में अपने पिता की महिमा करते हैं। That's what we read in Matthew 5:16. यही हम मत्ती 5:16 में पढ़ते So हैं। let us do good work इसलिए आइए हम अच्छे काम करें and let us share our things with other people और अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटें। who are in need. आइए हम उन लोगों की मदद करें जो May जरूरतमंद God हैं। help us to be like that. परमेश्वर हमें भी ऐसा बनने में मदद करें। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, हे प्रभु, हे oh gracious God, कितने दयालु not परमेश्वर only हैं। saving us, oh Lord, Thou hast given us a manual how to lead our lives in this world. आपने हमें न केवल बचाया है, बल्कि हमें इस संसार में अपना जीवन कैसे जीना है यह भी We बताया है। have to help other people. हमें दूसरों की मदद We करनी have है। to share our things with the believer, हमें अपनी चीजों को विश्वासियों and especially the household of faith. और खास तौर पर आस्था के घराने के साथ साझा Many करना times है। we are selfish. कई बार हम स्वार्थी हो जाते हैं। Selfishness is human nature. स्वार्थ मानव स्वभाव है, That is in our blood. यह हमारे खून में है। Oh Lord, help us, being born again people, to have your quality. लेकिन हे प्रभु, हम जैसे पुनर्जन्म लेने वाले लोगों को आपके गुण पाने में मदद करें। Today we may help somebody. आज हम किसी की मदद कर सकते हैं।
We may చిన్నది. share, O Lord, our things with the household of faith. हम अपनी सारी चीजें आस्था के परिवार के साथ साझा कर सकते हैं। In Jesus' precious name we यीशु के अनमोल नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।